Very good morning. Today we are going to discuss on the topic preamble. This is the fourth lecture in our constitutional lecture series, and today we are going to discuss about the preamble. These are the topics that we are going to cover, that is text of preamble, ingredients of preamble, keywords in the preamble like sovereign, socialist, secular, democratic, republic, justice, liberty, equality, fraternity. What are these meaning? We are going to dwell on this. We are also going to talk about the significance of preamble. We are going to talk about preamble is a part of constitution or not, because there has been a controversy regarding that, and also about the amendability of preamble. So today's topic is going to be very interesting, like yesterday's. First of all, I would like to read this constitution and I would like to ask you all to read this. The preamble reads that we, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice. Now, there are three kinds of justice mentioned: social, economic, and political. Liberty. Again, we have five kinds of liberty: thought, expression, belief, faith, and worship. Three. Then we have equality of status and opportunity, and to promote among them all. Also, fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. So, अब इस only from this text, सिर्फ इस पेज से कितनी सारी मीनिंग बाहर निकल के आती है, कितना कुछ हमें पता चलता है, वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे. इवन यहाँ पे अडॉप्ट और इनैक्ट लिखा है. If the constitution was adopted and enacted on 26 November 1949, then what happened on 26 January 1950? On that day, the constitution was enforced. तो आप इन words का ध्यान रखिएगा: adopt, enact और enforce. If any time it is asked that when was the constitution adopted or enacted, then you will answer 26 November 1949. But when it is asked that when was our constitution enforced, then you will write 26 January 1950. और आपको मैंने लास्ट क्लास में रीजन बताया था, हम 26 जनवरी को ही हमने क्यों इन्फोर्स किया. देयर वाज अ कहानी, होल स्टोरी ऑफ पूर्ण स्वराज that was demanded by Pandit Nehru. So today we are going to discuss that what does we the people of India means in this preamble, what does sovereign means, socialist means, secular, democratic. Now, two things that we are required to focus on this very page. That last में आप देखेंगे sub 1 और sub 2 लिखा हुआ है. According to one, there is a bracket: sovereign, socialist, secular, democratic, republic. So in this particular line, sovereign and republic and democratic were already there, but we added socialist and secular word. इन 5 वर्ड में socialist और secular word हमने बाद में जाके ऐड किया गया. नीचे लिखा हुआ है added by 42nd amendment 1976. मैंने आपको बताया है पहले भी, मैं फिर से बताऊंगा. 42nd amendment of the constitution is also called mini constitution because it was such a big amendment. It was termed as mini constitution. So also there was another word, that is integrity of the nation. Integrity word was added in the section of fraternity. Earlier it was unity of the nation. Later on, after this amendment, they made it unity and the integrity of nation. Now we are going to discuss about everything of it. बहुत interesting lecture है, आपका point of view change होगा बहुत चीजों को लेकर के. So let's start. So very first thing is about preamble. What is preamble? What does preamble mean? Preamble refers to introduction or preface of the constitution. If there is some book, कोई किताब पढ़ते हैं, हम कुछ पढ़ते हैं, तो सबसे पहले preface लिखा होता है. This preface mentioned, or we can say it is kind of an introduction to the constitution. So preamble is our introduction to the constitution. अगर किसी को constitution पढ़ना है, क्या लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, व्हाट आर द आइडिया मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या चाहता है अचीव करना. तो उसके लिए आप बिना पूरी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े सिर्फ प्रियम्बल भी पढ़ लेंगे तो यू विल गेट एन इंट्रोडक्शन अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर द गोल्स दैट वी वांट टू अचीव थ्रू दिस कॉन्स्टिट्यूशन. In other words, we can say that it contains the summary or the essence of the constitution. जो essence है हमारे constitution का, वो इसमें लिखा होता है. Yesterday हमने बात करी थी कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पंडित नेहरू ने पास किया था, इन्होंने ड्राफ्ट करके मूव किया था और उसको पास कर लिया गया था. Now our preamble, the idea of our preamble is based on objective resolution. ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में जो चीजों की बात करी गई थी, फ्रेटर्निटी की, इक्वालिटी की, लिबर्टी की, इन सब, इवन सॉवरेन स्टेट
बनने का, रिपब्लिक बनने का, इन सब आइडियाज को प्रियम्बल में रखा गया है. तो प्रियम्बल हैज बीन टेकन by the motivation of objective resolution which was passed by Pandit Nehru in Constituent Assembly. Also, प्रियम्बल के अंदर का आइडिया जो है वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से लिया गया है. बट एक बार क्वेश्चन आता है प्रियम्बल कहां से लिया गया है. दिस कॉन्सेप्ट ऑफ प्रियम्बल इज टेकन बाय द यूनाइटेड स्टेट्स. यूनाइटेड स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल है, वहीं से प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट लिया गया, प्रियम्बल हमारे यहाँ लाया गया. द प्रियम्बल ऑफ अमेरिका ऑल्सो रीड्स एट वी द पीपल ऑफ इंडिया एंड वी ऑल्सो रीड लाइक वी द पीपल ऑफ इंडिया. So the concept of preamble is taken from United States, but the matter in our preamble, the idea in our preamble is taken from the objective resolution. तो preamble का as a concept हम United States से लिए, और preamble के अंदर जो बातें लिखी हुई हैं वो पंडित नेहरू के objective resolution में mentioned थी, like sovereign state बनाना है, republic state बनाना है, हमें fraternity लोगों के अंदर evolve करनी है. तो ये सारी चीजें objective resolution में already mentioned थी. टिल डेट, आज की तारीख तक, मतलब टिल 4th of जुलाई, सिर्फ एक बार अमेंडमेंट हुआ है. द प्रियम्बल हैज बीन अमेंडेड वंस, दैट इज इन दैट 42nd अमेंडमेंट, और उस अमेंडमेंट में 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट एंड सेकुलर एज वेल एज इंटीग्रिटी. सो दीज 3 वर्ड्स वर एडेड by the 42nd amendment. I will be talking about all these words in the later part of the slide. अच्छा, नानी पालकीवाला was a very eminent jurist in India. So Nani Palkhiwala termed preamble as the identity card of the constitution. So suppose you are writing some kind of answer, and when you will mention that Nani Palkhiwala termed preamble as the identity card of the constitution, so it will give a very good impact on the examiner that yes, he is very well known to the preamble. Now, what are the ingredients of preamble? और हम preamble पढ़ के हमें क्या चीजें समझ में आती है? First of all, preamble talk about the source of authority of the constitution. इस constitution की authority किसने दी है? Who gave the authority to this constitution? Who is the source of authority? So if we will come to preamble, he says, we the people of India, having solemnly resolved, then all the matter, and give to ourselves this constitution. So it is we the people of India are the source of authority for this constitution. Who give authority to the constitution? The people of India. The sanctity or the validity given to the constitution is given by the people of India itself. So the very first thing what preamble speaks, that the source and authority of the constitution is granted by the people of India, जो कि सच है, क्योंकि हमने डील करा, इलेक्शंस हुए थे, इलेक्शन से रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, अलग अलग पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव आए थे, और फिर उन्होंने ड्राफ्ट किया. तो दे ड्राफ्टेड ऑन आवर बिहाफ, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव बन के गए और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया. सेकंड, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट. इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, की क्या नेचर है, सेकुलर है, नॉन सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, नॉन डेमोक्रेटिक है, सोशलिस्ट है, क्या है. तो इट इज रिटन that to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. So it talks about the nature of Indian state, कि India एक sovereign state है, India एक socialist state है, India is a secular state, India is a democratic state and a republic state. We will be talking about everything कि sovereign क्या होता है, socialist क्या होता है in the later part. Also, it talks about the objective of the constitution. What are the objectives that our constitution wants to achieve? Practically हम क्या चाहते हैं कि हमारे कंट्री में हो. तो वो ऑब्जेक्टिव भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, और वो ऑब्जेक्टिव्स हैं जस्टिस. वी वांट टू गिव सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस. द कॉन्स्टिट्यूशन वांट्स, और द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो वांट टू गिव इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट इक्वालिटी अमंग अस. Also, one of the objective of our constitution is to promote fraternity. So these are the objectives. तो हमें सोर्स पता चलता है, प्रीएम्बल पढ़ के हमें कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स पता चल जाता है. वो who is the source, who is the authority, who is giving the sanctity or the validity to this constitution. So we the people of India are giving the sanctity. और हमने बात करी थी कि sanctity इंडिया के लोग दे तो ये सबसे अच्छी बात होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हिंदू मैथोलॉजी में सोचें और सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट क्या है, तो कुछ कहेंगे रामायण, some will say भगवद गीता. बट if you will realize the most important text of Hindu religion is Vedas. सबसे sacred Vedas है. The reason Vedas सबसे sacred इसलिए है क्योंकि रामायण किसने लिखा आपको पता है, महाभारत किसने लिखा आपको पता है, बट वेदास किसने लिखे है किसी को नहीं पता. आप गूगल करेंगे तो आपको नाम भी नहीं आएगा. It is said that Vedas were Akashvani. God himself spoke about the Vedas. So that is why Vedas are so sacred, because it was
spoken by God himself. So this is why constitution is also so much sacred, because it has been granted the source of authority by the people of India itself. हमने खुद ही इसको sanctity दी है, इसीलिए constitution इतना sacred है. इसके लिए मैंने आपसे एक एग्जांपल डिस्कस कर लिया कि वेदास को इतना इंपॉर्टेंट इसलिए देते हैं क्योंकि रामायण और महाभारत में एवरीथिंग वाज रिटन बाय सम पर्सन, कोई किसी इंसान ने लिखा था. बट द वेदास को कहते हैं कि भगवान की आकाशवाणी हुई थी तो वेदास आए थे. सच है, ये गलत है, या इस पे मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम जस्ट हियर टू form an analogy and tell you the importance that it is very important that the constitution has got its source from the people of India itself. That is why it is the most primary law, it is the basic law, fundamental law, or the mother law of the country. Further, we have talked about nature, that it is sovereign, socialist, secular, democratic, and republic. Also about the objectives what we want to achieve. Now it also talks about the date of adoption. At the last line it is written, on this 26th day of November 1949, do hereby adopt an act and give to ourselves. So these were the four things. अगर हम समरी निकालें इस प्रियम्बल का तो हमें ये चार चीजें पता चलेंगी कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें चार चीज, प्रियम्बल हमें कम से एटलीस्ट ये चार चीजें तो बताना चाह रहा है कि सोर्स क्या है, नेचर क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, और अडॉप्ट किस डेट पे हुआ था. अब हम इन सब चीजों को अच्छे से डील करेंगे. कीवर्ड्स सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक. बहुत से लोग होते हैं सोशलिस्ट नहीं पता, कुछ को रिपब्लिक नहीं पता. तो आई विल बी डीलिंग एवरीथिंग, क्योंकि मैंने आपसे कहा था इट वाज अ कमिटमेंट दैट आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो. मैं ऐसा लेके चल रहा हूँ कि शायद आपको अभी कुछ नहीं पता, जीरो से शुरू कर रहे हैं. तो हम जीरो से ही शुरू करेंगे. इवन आपको पता है कोई कॉन्सेप्ट तो फिर से सुनिए और अच्छी रिवीजन होगी. मे बी आपके आइडिया में मेरा आइडिया ऐड ऑन हो जाए तो और बेटर क्लियरिटी मिले आपको चीजों को लेकर के. सो सॉवरेन, सॉवरेन मीन्स इंडिपेंडेंट स्टेट, जो हमने बात करी थी कल भी. इंडिपेंडेंट स्टेट से मतलब है दैट देयर इज नो अथॉरिटी अबव इंडियन गवर्नमेंट एंड वी आर फ्री टू कंडक्ट आवर इट्स ओन अफेयर्स. ये क्वेश्चन लास्ट सेशन में भी मेरे से पूछा गया था कि सर सॉवरेन का क्या मतलब है. मैंने बताया था. सो द सॉवरेन मीन्स दैट वी आर एन इंडिपेंडेंट स्टेट, वी आर नॉट इंफीरियर टू एनी अदर स्टेट. जैसे कि हम ब्रिटिश इंडिया में हमें कोई एक्शन लेना होता था, so we have to ask it from the British government. British government allow करती थी तभी कुछ होता था. Even the Constituent Assembly was formed by the Act of Indian Independence Act 1947. So everything which we used to do was directed by the British. But now, from 26 January 1950, we became sovereign nation. We are no more a dominion or a dominions or a colony of any country. We were independent, completely independent, meaning that we are the topmost authority. मैंने चैट ओपन किया है. अगर इफ समवन थिंक्स दैट देयर इज एनी अदर अथॉरिटी व्हिच इज सुपीरियर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्या कोई ऐसी अथॉरिटी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सुपीरियर है? अगर कुछ काम करना है इंडियन गवर्नमेंट को, तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सुपीरियर कोई अथॉरिटी है? तो इसका आंसर है नहीं. देयर इज नो अथॉरिटीज अबव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट. उनको कोई भी एक्शन लेना है तो वो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, किसी से एसेंट लेने की जरूरत नहीं है. And we are free to conduct our affairs both internally and externally. इंडिया में अगर हमें कुछ करना है तो भी हम फ्री हैं. अब सपोज करिए तेलंगाना फॉर्म किया गया आंध्र प्रदेश से निकाल करके, so it was our own decision. Indian government didn't went to ask to the Queen of Britain that ma'am can we please bifurcate Andhra Pradesh. No, we are a sovereign state, we can do anything. And even on external matter like for Kargil war, or there is a current dispute on border with China, so we are not going to ask from any other country that what should we do, should we fire or not, should we make our soldiers fight with them or not. So ऐसा कुछ नहीं है. We are independent state. Sovereign means an independent state. There is no authority above it and it is free to conduct its affair. We are completely free to conduct our affair. So this is the basic meaning of sovereign. Sir, we have to abide by international law and regulation. So does it make us any less of sovereign? Siddharth has asked me this question. No, Siddharth, I am talking about British and British Commonwealth and UNO also in this particular slide. But now you have taken up the question, so I am going to discuss. If India is member of any particular association, suppose United Nations Organization or British Commonwealth, so it is just a relation between other nations. हमने खुद से sign किया वो treaty ना. We ourselves signed that agreement. We ourselves signed that treaty. It is not like someone else is composing or imposing us that yes you have to do this. किसी ने जबरदस्ती तो हमसे वो agreement sign नहीं करवाया. हम जब किसी के साथ agreement में आए, it is like a contract. I came in a contract with you, but इसका मतलब ये तो नहीं that I became a slave of you. I am completely independent.
Yeah, I will be explaining second point also, Anuj. Be patient. So, being a member of any international organization does not take away our sovereignty. We are completely sovereign. It is just like a relation. अब आप किसी से शादी हो जाए तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप स्लेव हो गए हो, वो तो आपका एक रिलेशन फॉर्म हुआ ना. यू आर स्टिल इंडिपेंडेंट टू डू एनीथिंग. सो और आप चाहो तो उस ट्रीटी को ब्रेक भी कर सकते हो. ऐसा तो है नहीं इंडिया कैन नॉट secede from United Nation Organization or British Commonwealth. If India want that we don't want to continue as a member of UNO, we gave assent to Eleanor Roosevelt. We can cancel that assent. So it doesn't affect our sovereignty in any way. और आपको पता है बहुत सारे regulations का हर दिन यूनाइटेड नेशन की कंट्रीज जो है वो इन्फ्रिंजमेंट करती है. देयर आर सो मच रेगुलेशन लेट डाउन. चाइल्ड राइट्स के लिए इतनी रेगुलेशन लेट डाउन है. हम तो 1945 से मेंबर हैं. उसके बाद क्यों चाइल्ड लेबर होता है हमारी कंट्री में, उसके बाद क्यों चाइल्ड मैरिज होता है हमारी कंट्री में. सो देयर आर सो मेनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विथ विच वी आर एसोसिएटेड, बट इट डज नॉट इन एनी मैनर टेक्स अवे our sovereignty. We are completely sovereign. We are completely free to do our affairs both internally and externally. We are not. अब आप कहीं एक मैं घर का एग्जांपल लेता हूँ कि आप एक पर्टिकुलर आदमी है, यू आर एन एडल्ट, सो यू कैन डू एनीथिंग. इफ यू विश टू गो टू समवेयर यू कैन गो. लेकिन अब पेरेंट्स पूछते हैं ना कि बेटा कहाँ गए थे, क्या करने गए थे, तो हम आंसर देते हैं. बट इसका मतलब ये नहीं कि हमारी इंडिपेंडेंस ही खत्म हो गई, हम कहीं मूव नहीं कर सकते. तो ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में यही होता है, कंट्री अपनी पर्सपेक्टिव रखती है. इवन थिंग्स गो टू एन एक्सटेंट कि साउथ चाइना सी डिस्प्यूट हुआ था. सो चाइना को उसमें कंपनसेशन देना था. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा आप कंपनसेशन दीजिए, तो चाइना मना कर गया. चाइना सेड दैट वी आर नो पार्टी टू दिस केस. सो लोग यहाँ तक चले जाते हैं. तो इसका मतलब ये नहीं कोई सॉवरेनिटी कांट बी टेकन अवे बाय बीइंग अ मेंबर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. I hope this was clear. Now let's talk about second point, that being a sovereign state, India can either acquire a foreign territory or secede a part of its territory. मैं दोनों ही केस की बात करता हूँ. Now we are sovereign. So sovereign means that we are independent. We can do anything, whatever we wish. Suppose Indian government want to give some territory of India to any other country. For very example, let's take the case of Beruberi Union. Be very attentive. This is very interesting case. Now what happened? Redcliffe ने एक लाइन खींच दी. Redcliffe line. इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड कर दिया. बांग्लादेश जो टेरिटरी थी, बांग्लादेश के साइड इंडिया में क्या हुआ, जब रेडक्लिफ ने लाइन खींची तो ये लाइन बहुत लोगों के घर के ऊपर से गुजर गई. इवन वन रूम ऑफ अ हाउस केम इन पाकिस्तान, एज बांग्लादेश वाज कॉल्ड पाकिस्तान बैक देन, एंड वन रूम ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस केम इन इंडिया. इवन प्रॉब्लम्स लाइक किसी का घर इंडिया में है और किसी की फील्ड्स, किसी के खेत बांग्लादेश में, या वाइस वर्सा. तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई. रेडक्लिफ ने तो लाइन ऐसे ही खींच दी थी, रेडक्लिफ लाइन. सो प्रॉब्लम स्टार्टेड. तो इस इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए नेहरू नून एग्रीमेंट हुए थे, बहुत सारे एग्रीमेंट हुए थे. लास्टली जो जब ये डिस्प्यूट खत्म हुआ वाज द 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच इज कॉल्ड इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट. उसमें हमने अपनी कुछ लैंड जो है वो बांग्लादेश को दे दी, बांग्लादेश की कुछ लैंड हमने ले ली, जिस हिसाब से दिक्कत ना हो. ऐसा भी होता था, ऐसा इंटरेस्टिंग सा सिचुएशन क्रिएट हो गया था कि देयर वर सम टेरिटरी जिनके चारों तरफ, जैसे बांग्लादेश की टेरिटरी है और चारों तरफ इंडियन कंट्रीज है, इंडिया की टेरिटरी है, बीच में एक बांग्लादेश की टेरिटरी छोटी सी. अब वो टैक्स बांग्लादेश को दे रहे हैं, चारों ओर उसके इंडियन गवर्नमेंट है. तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी बेरुबरी यूनियन में, और बहुत प्रोटेस्ट हुआ था. मैं बताऊं, इतना इंटरेस्टिंग केस है कि बेरुबरी में हिंदू मेजोरिटी रहती थी. बेरुबरी वाज अ प्लेस इन जलपाईगुड़ी, वेस्ट बंगाल. इट वाज अ स्मॉल विलेज इन जलपाईगुड़ी, वेस्ट बंगाल. तो उसमें हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा रहती थी. अब उस समय आपको पता है जब डिवीजन हुआ तो हिंदू मुस्लिम में कितना डिफरेंसेस क्रिएट हो गया था. सो दे डोंट वांटेड टू गिव बेरुबरी टू बांग्लादेश. सो एक बंगला में एक फ्रेज चलती थी, आमी प्राण देबो रक्त देबो बेरुबरी देबो ना. Means we can give blood, we can give life, but we don't want to give Berubari. But Nehru was adamant on giving Berubari to Bangladesh in order to resolve this dispute. तो बहुत लोगों ने, अपने 50,000 लोगों ने कहते हैं, उन्होंने एक लेटर लिखा प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कि सर प्लीज स्टॉप दिस. और उन्होंने अपना ब्लड भी उस पर गिराया. मतलब खून से लेटर लिखना कह सकते हैं, लेकिन पूरी फॉन्ट्स उसके खून से नहीं लिखे थे, बट उस पर एक दो ड्रॉप अपना ब्लड भी गिरा के 50,000 लोगों ने प्रेसिडेंट को लिखा, सर वी डोंट वांट बेरुबरी टू गो टू बांग्लादेश. इट वाज सच अ बिग केस. लेकिन लोगों को नहीं पता होता क्योंकि लीगली इतना रिलेवेंट नहीं है. इस केस में तो बात हुई थी कि क्या हम अपनी टेरिटरी किसी को दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं. तो कोर्ट हेल्ड कि हम अपनी टेरिटरी दे सकते हैं अगर यूनियन चाहे तो अमेंडमेंट लाके. क्योंकि आपको पता है जो शेड्यूल 1 है,
शेड्यूल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हमारी टेरिटरी कहाँ कहाँ है, कौन कौन सा स्टेट है, एरिया कितना है। तो अब आप एरिया चेंज कर रहे हैं तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में भी तो चेंज लाना पड़ेगा, यू मस्ट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। सो बीइंग अ सॉवरेन स्टेट वी कैन एक्वायर अ फॉरेन टेरिटरी और सीसीड अ पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी। जो हमने बांग्लादेश को पार्ट दे दिया और एग्रीमेंट था, हमने बांग्लादेश से भी कुछ एरिया उनका लिया। अल्दो वी आर क्रिटिसाइज कि हमने ज्यादा एरिया दिया है और कम एरिया लिया है, स्टिल हमने अपना पार्ट दिया भी और फॉरेन कंट्री से एक पार्ट लिया भी। तो सॉवरेन होने के कारण वी आर फ्री टू ईदर एक्वायर अ फॉरेन टेरिटरी और सीसीड अ पार्ट ऑफ आवर ओन टेरिटरी। आई होप आई एम कंप्लीटली क्लियर ऑन सॉवरेन। फर्दर, नाउ दिस इज सोशलिस्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। इट्स लाइक सैलेड। ये वर्ड सैलेड यूज करते हैं हम कि आई एम हैविंग सैलेड। तो सैलेड मीन्स फ्रूट सैलेड, वेजिटेबल सैलेड। Nowadays Subway also gives us chicken salad. So salad का बहुत सारा वर्जन है। सिर्फ सैलेड वर्ड यूज करने से आप एक मीनिंग नहीं लोगे। सैलेड का अलग अलग मतलब है। सोचिए, मीन्स दैट सोशलिस्ट गवर्नमेंट वाज इन जर्मनी आल्सो, इट इज वाज इन फिनलैंड आल्सो। बट जर्मनी में ऐसे नाजी गवर्नमेंट हुई, इतना हार्श ट्रीटमेंट हुआ, और वहीं फिनलैंड जो है वो हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप 5 में आती है। तो ऐसा क्यों कि एक ही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होने के कारण इतनी वेरिएशंस हैं। तो आज हम समझेंगे कि सोशलिस्ट भी दो तरीके के होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ सोशलिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टॉक अबाउट व्हाट इज अ सोशलिज्म। समाजवाद हिंदी में कहते हैं। तो सोशलिज्म इज अ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक थ्योरी of social organization which advocates the means of production, distribution and exchange should be owned or regulated by community as whole. Now what does this definition means? It means that if there is certain कोई भी चीज की प्रोडक्शन हो रही है या डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, तो अगर आपको पब्लिक में कोई चीज प्रोड्यूस करके डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उस चीज को का जो ओनर होगा वो कम्युनिटी खुद ही होगी। पब्लिक शुड बी द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। ना पब्लिक का ओनर होने का मतलब है कि गवर्नमेंट ओन करे चीजों को, संसाधनों को। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ कोल माइन। सो if there is a socialist government, they wish that the coal mine should be owned by the government of India. ऐसा नहीं कि कोल माइन आप अडानी को दे दो या अंबानी को दे दो, किसी पर्टिकुलर पर्सन को ओन कर रहा है। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो प्रोडक्शन के मीन्स हैं, इवन फॉर द पर्पस ऑफ स्कूल, स्कूल का एग्जांपल लेके अगर हम पूरी बात करें तो स्कूल गवर्नमेंट स्कूल है हमारे यहाँ पे। तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल ये कहता है कि देयर शुड बी गवर्नमेंट स्कूल। सरकार स्कूल को कौन ओन करे? गवर्नमेंट ओन करे। गवर्नमेंट कौन है? कम्युनिटी एज अ होल ओन करने की बात हो रही है। मतलब जो प्रोडक्शन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन, स्कूल्स में तो यही होता है। तो ये काम गवर्नमेंट करे, गवर्नमेंट का फंक्शन है। कोई कोल माइन है तो गवर्नमेंट ओन करे उसको। कोई रिवर है तो रिवर शुड बी ओन बाय द गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट का वो पार्ट होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि कोई आदमी उठ के कह देगा नहीं गंगा मेरी है और दिस this Tista river belongs to someone else. So this can't be done. All of these are can't be said to be property of a particular person. तो socialism talk about जो भी प्रोडक्शन के मीन्स है, डिस्ट्रीब्यूशन के मीन्स है, वो ओन किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट शुड ओन देयर। अब देखिए, ये सोशलिस्ट वर्ड जो था वो पहले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। इट वाज एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976। और बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं। पीपल आज की कांग्रेस गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की अपनी आइडियोलॉजी है सोशलिज्म प्रमोट करने का। मैं आपको एक बात बताऊं, गौर से सुनिएगा, और अगर आप गौर से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं 100% सच बोल रहा हूँ। अगर आप न्यूज पढ़े हैं तो आज की डेट में रेलवे के प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है कि इवन कल ही 131 कंपनीज को इनविटेशन भेजा इंडियन गवर्नमेंट ने कि आप आइए और अपना स्कीम पेश करिए। सो द एनडीए गवर्नमेंट, देखिए मैंने हर बार कहा है कि लॉ एंड पॉलिटिक्स गो हैंड इन हैंड। जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो कांग्रेस गवर्नमेंट सोशलिज्म पे फोकस करती थी। बट ब्रिटिश कह रहा हूँ, भाजपा गवर्नमेंट है, दे फोकस ऑन कैपिटलिज्म। अब ये प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं हर चीज का। आपको पता है बीएसएनएल का हाल, आपको पता है एयर इंडिया का हाल, हर जगह से डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। दिस इज द पॉलिसी ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, करंट इंडियन गवर्नमेंट, दैट वी वांट टू डिसइन्वेस्ट आवर मनी, वी वांट टू टेक आउट आवर मनी फ्रॉम पब्लिक थिंग्स। लाइक अब रेलवे से वो रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कर रही है। बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? देयर शुड बी सोशलिज्म। अब सोशलिज्म भी दो तरीके के होते हैं, उसकी अभी हम बात करेंगे कि इंडिया में कौन सा सोशलिज्म है। सो अगर आप पेपर पढ़ें तो चीजों को गौर से पढ़ा करिए। तो आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको हर बार नजर आएगा कि बीजेपी गवर्नमेंट ने हर बार यही कोशिश करी है, डिसइन्वेस्ट करना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये सही है या गलत है, आई एम टॉकिंग अबाउट देयर पॉलिसी। डिसइन्वेस्टमेंट का अपना भी फायदा होता है कि पैसे बचती है सेंट्रल गवर्नमेंट का, रेलवे पे इतना पैसा खर्च हो रहा है इंडियन गवर्नमेंट का, लेकिन नुकसान भी है। डिसइन्वेस्टमेंट कर लिया, प्राइवेट प्लेयर्स आ गए। नाउ द प्राइवेट प्लेयर्स वुड लाइक टू हैरेस अस
वो तो हमेशा एक्सप्लॉयटेशन चाहेंगे, दे वांट देयर बेनिफिट। गवर्नमेंट एक पल को बेनिफिट नहीं चाहेगी, गवर्नमेंट चाहेगी कि वेलफेयर। बट अगर कोई प्राइवेट प्लेयर आता है जो हमें प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, हमें चीजें प्रोवाइड कर रहा है, तो ही विल सीक फॉर हिज ओन बेनिफिट फर्स्ट ऑफ ऑल। सो सोशलिस्ट प्रिंसिपल की ये बात हो रही थी। सोशलिज्म में क्या होता है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो कम्युनिटी ही ओन करती है। सिंपल भाषा में कहें तो जनरली गवर्नमेंट ओन करती है जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जो चीजें होते हैं, माइंस हो गए, रेलवेज हो गए, सब चीजों को। इवन फॉर द एग्जांपल बीएसएनएल ले लीजिए, वो भी इंडियन गवर्नमेंट ओन की ही थी। एमटीएनएल ले लीजिए। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ओन करे, गवर्नमेंट ओन करेगी तो फायदा ये होगा, गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली करेगी। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब ये है गवर्नमेंट, अब आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है देयर कैन नॉट बी डिफरेंशिएशन बिटवीन टू इक्वल पर्संस। आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है, आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो अगर गवर्नमेंट चीजें डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो बराबर ही डिस्ट्रीब्यूट करेगी, आपको, मुझको, हर किसी को बराबर डिस्ट्रीब्यूट करेगी। नाउ सोशलिज्म दो तरीके की होती है, क्योंकि लेक्चर मैं नहीं चाहता बहुत ज्यादा लंबा चले, बट क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग है कि मुझे भी बताने में बहुत मजा आ रहा है। सोशलिस्ट प्रिंसिपल दो तरीके के होते हैं, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड कम्युनिस्ट सोशलिज्म। पहले मैं कम्युनिस्ट सोशलिज्म की बात करता हूँ। कम्युनिस्ट सोशलिज्म होता है नेशनलाइजेशन ऑफ एवरीथिंग, मतलब गवर्नमेंट सब कुछ ओन करेगी, गवर्नमेंट ही। एवरी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन शुड बी ओन बाय गवर्नमेंट। ठीक है, आप स्कूल में भी गवर्नमेंट के जाओगे, आप खाना तो नहीं, आप स्कूल में भी गवर्नमेंट के जाओगे, रेलवे भी गवर्नमेंट की होगी, जो मेजर प्रोडक्शन की चीजें हैं वो सब गवर्नमेंट ओन करेगी। बट देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो इंडिया में, इट इज अ काइंड ऑफ अ मिक्स्ड इकोनॉमी। यहाँ पे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर साथ में कोएग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, let's talk about telecom industry. We have BSNL, which is Indian government product, and we have Jio, we have Bharti Airtel, we have Idea, वो तो पहले था, we have Vodafone. So in this particular case of telecom industry, we see the coexistence of both private and public players. We have public sector like BSNL, we have public players like Bharti Airtel. So दोनों चीजें साथ में कोएग्जिस्ट कर रही है, इसको कहते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। मतलब कि सोशलिज्म तो है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑल्सो। अगर आपको गवर्नमेंट की चीज लेनी है तो आप गवर्नमेंट की लीजिए, साथ में प्राइवेट प्लेयर्स को भी छूट दे दी गई है कि प्राइवेट सेक्टर भी इसमें काम कर सकता है। सो दिस इज कॉल्ड मिक्स इकोनॉमी। इसलिए हम कहते हैं हमारी कंट्री मिक्स्ड इकोनॉमी है। या फिर इसको हम, जो कम्युनिस्टिक सोशलिज्म होता है उसको लोग मार्क्सिस्ट सोशलिज्म भी कहते हैं। तो हमारे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को गांधीयन सोशलिज्म भी कहा जाता है। Yes, Rubina, I can repeat the type of socialism. It is very well mentioned in the PPT that democratic socialism and communistic socialism. We have democratic socialism in which public and private sector both coexist at the same time. दोनों साथ साथ हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी है। बट अगर कम्युनिस्ट सोशलिज्म होता तो दोनों साथ साथ नहीं होते, सिर्फ नेशनलाइज चीजें होती, सिर्फ पब्लिक सेक्टर होता, प्राइवेट सेक्टर होता ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने डिस्क्राइब किया एक टेलीकॉम इंडस्ट्री का कि हम जब सिम लेते हैं तो वी हैव ऑप्शन टू ऑफ बाइंग अ बीएसएनएल सिम, जो कि पब्लिक सेक्टर का है, जो कि गवर्नमेंट की एक इंटरप्राइज है। एंड वी हैव द ऑप्शन ऑफ बाइंग अ भारती एयरटेल सिम आल्सो, जो कि एक प्राइवेट सेक्टर का है। सो बोथ ऑफ दीज थिंग को एग्जिस्ट। सो इंडियन सोशलिज्म इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, और इसको गांधीयन सोशलिज्म भी कहते हैं। और ये कहना कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल 42nd अमेंडमेंट से ही लाया गया, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे यहाँ डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के साथ साथ ही बन गया था। And our DPSP contain provisions of socialist provisions. There are socialist provision in our DPSP also. But 1991 में आपको पता है लिबरलाइजेशन हुई, ग्लोबलाइजेशन हुई, एक पॉलिसी आई जिसने जो सोशलिज्म को थोड़ा डाइल्यूट कर दिया, जिसने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया कंट्री में। मैं आगे बढ़ता हूँ, सेकुलर की बात करते हैं। सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष। 42nd अमेंडमेंट से सेकुलर वर्ड ऐड किया गया। अच्छा, इस पर भी बहुत बवाल हुआ, लोग तुरंत कोर्ट जाने लग गए कि, क्योंकि आपको पता है हमारा डिवीजन हुआ था, पाकिस्तान में एक मुस्लिम कंट्री है, बट इंडिया, बहुत लोगों के मन में ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी दैट इंडिया इज अ हिंदू कंट्री, बट इट इज नॉट सो। इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट, लेट मी बी वेरी फ्रैंक। सो सेकुलर स्टेट है इंडिया, और जब सेकुलर वर्ड ऐड किया गया प्रीएम्बल में 42nd अमेंडमेंट से, तो आपको पता है, जो लोग थोड़ा पॉलिटिकली एक्टिव हैं उनको पता है कि कांग्रेस पे आए दिन एलिगेशन लगते हैं दैट दे फेवर मुस्लिम्स, दे डू माइनॉरिटी अपीजमेंट। ये एक बहुत पुराना एलिगेशन कांग्रेस पे लगा आता है। तो उस पॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए जब उन्होंने सेकुलर वर्ड लाया, तो जो अदर कम्युनिटी थी उन्होंने कहा ये तो गलत कर रहे हैं, ये तो हिंदू कंट्री होनी चाहिए। जब डिस्ट्रीब्यूशन इस बेसिस पे हुआ था कि मुस्लिम विल गो टू पाकिस्तान, तो उन्होंने चैलेंज किया। बट सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे से पहले, इस सेकुलर वर्ड ऐड होने से पहले ही बता दिया था कि सर,
India is a secular country, although it is not mentioned, the word secular is not mentioned in the constitution, but there is no doubt that our constitution makers wanted it to be a secular country. क्योंकि अगर आप provisions देखें आर्टिकल 25 से 28 तक जो हमें राइट टू रिलीजन देते हैं, फ्रीडम ऑफ राइट टू रिलीजन, तो वो सब इस बात पे ही फोकस करते हैं कि यस वी आर अ सेकुलर कंट्री, सेकुलरिज्म है हमारे यहाँ. सो वर्ड मेंशन नहीं था, बट कोर्ट ने क्लियर कर दिया वर्ड मेंशन ना होने से मतलब ये नहीं है कि इट इज नॉट अ सेकुलर कंट्री. इन वी प्रोवाइड अ पॉजिटिव सेकुलरिज्म. पॉजिटिव सेकुलरिज्म से मतलब ये है कि हम हर रिलीजन को बराबर स्टेटस देते हैं. नेगेटिव सेकुलरिज्म की बात भी करी थी, थियोक्रेटिक स्टेट की भी मैंने बात करी थी, रात को एक इमेज भी भेजी थी मैंने ग्रुप पे, इन विच अ स्टेट डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी स्टेट, एनी रिलीजन, बट इन आवर कंट्री वी रिकॉग्नाइज ऑल रिलीजन इक्वली. नाउ लेट्स गो मूव फर्दर. डेमोक्रेटिक, व्हाट इज डेमोक्रेटिक? तो डेमोक्रेसी क्या होती है आप सबको पता है, मैं इस पे टाइम नहीं लूंगा. वी आर अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी एंड हमारी डेमोक्रेसी इस डॉक्ट्रिन पे बेस्ड है, डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी. मींस द सुप्रीम पावर इन दिस कंट्री इज द पीपल. वी आर द सुप्रीम पावर. हम जिसे चाहे इलेक्ट करें, हम जिसे चाहे इम्पीच करें, हम क्योंकि all those are representative only. All those people sitting in the house and making laws on behalf of us are our representative. We have elected them. So our democracy is based on the doctrine of popular sovereignty. Means the position of supreme power is held by the people of India. We are the supreme power. So you must be proud that you are the supreme power. You can change the prime minister also. So there are two types of democracy: direct and indirect. We have indirect democracy. Now let me talk about direct and indirect both. Direct democracy is a bit different from indirect democracy. Direct democracy is practiced in Switzerland. We can take an example of Switzerland. अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी पीपल एक्सरसाइज देयर सुप्रीम पावर डायरेक्टली, एज इन केस ऑफ स्विट्जरलैंड. वो डायरेक्टली, जैसे हमारे यहाँ कोई लॉ आता है तो पार्लियामेंट में डिस्कशन होती है, वहां पास होता है. बट इन स्विट्जरलैंड देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसेट. अब ये चार चीजें क्या होती हैं जो इसको एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी बनाती है? नो, रिफरेंडम मीन्स, रिफरेंडम इज अ प्रोसीजर where a proposed legislation is referred to the electorate for settlement by direct votes. मतलब कि कोई पर्टिकुलर लेजिस्लेशन है, उसको आपने, जैसे मान लीजिए ट्रिपल तलाक पे बिल आया, तो उसको अभी तो हाउस डिस्कस करती है, हाउस वोट करती है. अगर डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती तो इलेक्टोरेट में हम पब्लिकली ओपन कर दिया था, आप वोट करिए कि आप चाहते हो ये एक्ट आए या ना आए. दिस इज काइंड ऑफ अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी. दिस इज कॉल्ड रिफरेंडम, रिफरिंग टू द पीपल इटसेल्फ. लीजिए, सीएए इज अ डिबेटिंग टॉपिक, लो मैं देता हूँ पब्लिक को, इट इज ओपन टू पब्लिक. जैसे हर इलेक्शन होते हैं, वोट आप करते हो हर पार्टी के मेंबर पे, वैसे ही आप इस पर्टिकुलर बिल पे भी वोट कर सकते हो. इट इज रिफर टू द पब्लिक, इट इज कॉल्ड रिफरेंडम. So this is a provision in a direct democracy, which is Switzerland. Also, there are other features also, like initiative. This is a method by which a simple man can propose a bill to the legislature. हमारे यहाँ बिल कौन लाता है? हमारे यहाँ बिल तो इनिशिएट करता है, जो वर्ड से ही हम समझ सकते हैं इनिशिएटिव. हमारे यहाँ bills are initiated by the members of the house. But in direct democracy, if there is a common man, he can also suggest that, sir, we want to propose this bill. Now there is recall. Recall is a means of voting by which आप किसी रिप्रेजेंटेटर को या ऑफिसर को उसका टर्म खत्म होने से पहले ही इम्पीच कर सकते हो, डिस्चार्ज कर सकते हो. मतलब पब्लिक चाहे, अभी आपको पता है हाउस चाहेगा तो किसी को इम्पीच कर पाएगा, बट इफ देयर विल बी अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसे स्विट्जरलैंड में होता है, तो पब्लिक इटसेल्फ कैन इम्पीच. वहां भी वोटिंग करके वो खुद ही वोटिंग मेथड से इम्पीच कर सकती है. तो इवन एंड देयर इज लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेबिसाइट, जिसमें आप पब्लिक का ओपिनियन लेते हो कि ये पर्टिकुलर चीज को क्या करना चाहिए. जैसे कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट हो गया, शुड वी गिव बांग्लादेश दैट बेरुबरी टू बांग्लादेश और नॉट. सो वी हैव अ डिस्कशन विद पब्लिक, वी टेक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पब्लिक और देयर मूड, क्या है उनका मूड इस पर्टिकुलर चीज पे. तो आपको पता चला डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है. उसके मैंने 3-4 फीचर्स आपको बात करे. रिफरेंडम, जो कि मैं एक बार मैं जल्दी फिर से बताता हूँ. रिफरेंडम आप लोग नोट करेंगे तो और अच्छा रहेगा आपके लिए. तो रिफरेंडम होता है, रिफरेंडम इज अ प्रोसेस जिससे आप कोई लेजिस्लेचर, पब्लिक को ही रिफर कर दिया जाता है. वर्ड रिफरेंडम से ही समझ में आता है कि लेजिस्लेचर ने कोई एक्ट जो है वो पब्लिक को रिफर कर दिया कि आप इस पे वोट करिए, अगर ये पास होता है तो इनेक्ट हो जाएगा, फेल होता है तो इनेक्ट नहीं होगा. इनिशिएटिव होता है जिसमें पब्लिक ही प्रपोज करती है एक पर्टिकुलर बिल लेजिस्लेचर के सामने. तीसरा होता है रिकॉल. रिकॉल इज अ मेथड जिससे आप कोई पब्लिक ऑफिसर को उसका टर्म एक्सपायर होने से पहले ही ऑफिस से हटा सकते हैं, इम्पीच कर सकते हैं, निकाल सकते हैं. एंड लास्ट
प्लेबिसिट से हम पब्लिक की ओपिनियन लेते हैं किसी पर्टिकुलर मेथड पे। तो नाउ इंडिया में क्या है? इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। नाउ व्हाट डज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी मींस? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी मींस दैट वी सेंड आवर रिप्रेजेंटेटिव्स टू द हाउस, वी elect certain person and they go to house and carry on the government and make laws for us। हम तो, आप तो लॉ नहीं बनाते। हो सकता है किसी ने बीजेपी को वोट करा और हो सकता है उसका ओपिनियन ये हो कि CAA शुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इन द कंट्री। बहुत से लोग होंगे आई बिलीव ऐसे सोच वाले जिन्होंने बीजेपी को भी वोट दिया, और क्योंकि CAA में पब्लिक बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपको पता है कि डिवाइडेड ओपिनियन है, बहुत लोग फेवर में है, बहुत अपोज में है। तो ऐसे भी लोग होंगे जो बीजेपी को वोट किए होंगे लेकिन वो CAA नहीं चाहते। तो अब क्या हो सकता? अगर ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती तो यहाँ बेनिफिट मिल जाता क्योंकि वहां आप उस पर्टिकुलर एक्ट पे वोट करते। बट इट इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, तो आपके जो रिप्रेजेंटेटिव है उसका ही विल अब रखा जाएगा। ये एक फ्लॉ है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में। आई रिमेंबर मैं दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली गया था रिगार्डिंग अ प्रोग्राम। तो मैं असेंबली में था और अरविंद केजरीवाल बोल रहे थे, तो ही इज सच एम्बिशियस मैन। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारा गोल ये है कि हमारे कंट्री में भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो। बट डायरेक्ट डेमोक्रेसी के भी फ्लॉज हैं। बहुत ज्यादा खर्च होगा, एक बार इलेक्शन होता है इतने पैसे खर्च हो जाते हैं। अगर हर बार आप लॉस पे ऐसे आप वोटिंग शुरू करवा दोगे तो हमारे पास रिसोर्सेज उतने हैं नहीं। तो ऐसी चीजें भी हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस। अगर किसी को डाउट है तो आप चैट पे पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई। वी हैव इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। मूविंग फर्दर, रिपब्लिक। व्हाट इज अ रिपब्लिक? अ रिपब्लिक की बात करें, डेमोक्रेसी दो टाइप की होती है। आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ, मोनार्च डेमोक्रेसी भी हो सकती है। अब आप कहोगे ये क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, दिस इज काइंड ऑफ ऑक्सीमोरॉन यूजिंग मोनार्ची एंड डेमोक्रेसी टुगेदर। yes, there are monarch democracy in this world. For example, Britain, you can google this. Now what happens कि ब्रिटेन में जो हेड है, वो हेड ऑफ द स्टेट जो होता है ब्रिटेन का, किंग कह लीजिए, क्वीन कह लीजिए, वो ऑफिस में कैसे आता है? थ्रू सक्सेशन। अब आप कहते हैं प्रिंस चार्ल्स सब बन गए हैं, अब ये क्वीन एलिजाबेथ बन गई हैं, तो ये सक्सेशन के थ्रू होता है। जो भी पर्सन एक के बाद एक पैदा हो रहा है वो हेरिडिटरी वो पोजीशन ले रहा है। मोनार्च में ऐसा होता है, जो कि ब्रिटेन है। ब्रिटेन में जो जो हेड ऑफ स्टेट होता है, मोनार्च मतलब द हेड ऑफ स्टेट, हु इज द हेड ऑफ द दैट पर्टिकुलर स्टेट, इज नॉट इलेक्टेड, इट ही केम टू दैट पोजीशन थ्रू सक्सेशन, जैसे कि ब्रिटेन में होता है। और रिपब्लिक वो जगह होती है, रिपब्लिक इज द अपोजिट ऑफ मोनार्च। आई कैन सिंपली इन सिंपल वर्ड, रिपब्लिक वो जगह होती है जहां हेड ऑफ स्टेट जो है वो इलेक्टेड होता है, वेयर द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है। और इंग्लैंड में जो हेड है स्टेट का, यानी किंग और क्वीन, उनके, क्योंकि काम किस पे करते हो? हमारे यहाँ काम होता है इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट इंग्लैंड में कैसे काम होता है? इन द नेम ऑफ इन हिज एम्प्रेस, हेयर एम्प्रेस, इस तरीके से क्वीन, किंग, ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं। तो वहां चीजें, वहां हेड ऑफ स्टेट कौन है? किंग या क्वीन है, जो कि इलेक्टेड नहीं है, जो सक्सेशन से आए हैं, तो दैट इज अ फॉर्म ऑफ मोनार्क। बट रिपब्लिक वो जगह होती है जहां हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? वो इलेक्टेड होता है। फॉर एग्जाम्पल द यूनाइटेड स्टेट्स। अब आप बताइए हमारी कंट्री मोनार्क हुई या रिपब्लिक हुई? हमारे यहाँ हेड ऑफ स्टेट कौन है? हु इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया? दैट इज द प्रेसिडेंट। एंड वी नो दैट देयर आर इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट इज एन इलेक्टेड मेंबर। सो वी आर रिपब्लिक कंट्री। नो रिपब्लिक। और अब रिपब्लिक कंट्री होने का दो और बेनिफिट है या दो और मतलब है, जो ऑल्दो समझ में आ रहा है, बट मैं फिर भी इसको स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करके डिस्कस करना चाहूंगा कि अगर किसी ने ज्यादा सोचा नहीं तो ये भी फायदा होता है रिपब्लिक का। एक, वेस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल सॉवरेनिटी इन पीपल, नॉट किंग और क्वीन। मतलब सॉवरेन कौन हुआ? जो हमने बात करी थी हमारी डेमोक्रेसी कैसी है, इट इज ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक सॉवरेनिटी। हम सॉवरेन है, तो इसमें भी यही बात होती है कि पीपल सॉवरेन है, पीपल आर द हाईएस्ट अथॉरिटी। हम चूज करते हैं कौन हमें रूल करेगा। सक्सेशन नहीं होता, कोई किंग क्वीन नहीं है कि अपने आप आए और वो हम पे रूल करने लग गए। एंड सेकेंड पार्ट इज एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज क्लास। मतलब कि अगर हेड ऑफ स्टेट का इलेक्शन है, अगर ब्रिटेन की बात करें, तो मैं तो नहीं कह सकता सर आई वांट टू बी द किंग और क्वीन ऑफ ब्रिटेन। क्यों? क्योंकि वो तो हेरिडिटरी पोजीशन है, वो कहेंगे हम तो किंग के या क्वीन के डॉटर और सन को ही बनाएंगे। बट यूनाइटेड स्टेट्स का अगर मैं सिटीजन होता तो मैं आर्ग्यू कर सकता था कि सर आई वांट टू रन फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, क्योंकि प्रेसिडेंट का इलेक्शन ओपन सबके लिए है। तो यही एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज क्लास भी एक मतलब होता है हमारी कंट्री में। जैसे अगर आपको MP बनना है तो आप इंडियन सिटीजन है तो आप लड़ सकते हैं, सर्टेन रिक्वायरमेंट्स है एज वगैरह की, बट कोई प्रिविलेज क्लास नहीं है कि सिर्फ पारसी लोग ही MP का इलेक्शन लड़ सकते हैं, सिर्फ जैन लोग ही प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन लड़ सकते हैं। ऐसा तो कुछ हमारे यहाँ प्रिविलेज क्लास का सिस्टम तो है नहीं।
तो ये एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज क्लास बताता है रिपब्लिक। कोई पॉलिटिकल रिपब्लिक है तो मतलब उस पर्टिकुलर पोस्ट पे कोई भी बंदा इलेक्शन लड़ सकता है। वी आर फ्री, इफ यू विश टू रन फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, गो हैव एन इलेक्शन, बट सब्जेक्ट टू सर्टेन बेसिक रिक्वायरमेंट्स। वो अलग चीजें हैं, लेकिन हमने क्लास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करा है, क्लास स्पेसिफाई नहीं कर दिया कि ये क्लास का बंदा इलेक्शन लड़ सकता है, ये क्लास का नहीं लड़ सकता। मूविंग फर्दर, after republic we are going to discuss about justice. So in our constitution there are three types of justice mentioned: social, economic and political. मैं तीनों का मतलब बता के जल्दी से आगे बढ़ूंगा क्योंकि सेशन लंबा चल रहा है। सोशल मीन्स, वी मीन बाय सोशल जस्टिस वी मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल सिटीजन। सामाजिक न्याय मैं हिंदी कहूं तो सामाजिक न्याय से मतलब ये है कि सबको बराबरी से, समता का अधिकार, सबको बराबरी से ट्रीट किया जाए। वी ऑल शुड बी ट्रीटेड इक्वली इररिस्पेक्टिव ऑफ रेस, कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, एवरीथिंग। इन सब से अलग होकर के हम सबको बराबर ट्रीटमेंट मिले, दिस इज कॉल्ड सोशल जस्टिस। नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक जस्टिस? इकोनॉमिक जस्टिस मतलब होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर देयर शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेशन, जो कि नहीं होता हमारी कंट्री में। सपोज करिए कि आप वोट देने जा रहे हैं, ये सब स्टेट के लिए है, आप वोट देने जा रहे हैं, अंबानी जी भी वोट देने जा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि अंबानी का वोट जो होगा वो इंटू 10 टाइम्स कंसिडर होगा और आपकी वोट की वैल्यू 1 होगी। द गवर्नमेंट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन टू पर्सन ऑन बेसिस ऑफ इनकम। बीएसएनएल जितने रुपए का पैक आपको देगा और जो उसकी स्कीम होगी, सेम मंथली पैक मुझे भी मिलेगा। दे आर नॉट गोइंग टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन मी एंड यू। सो इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब यह है कि इनकम के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। केंद्रीय विद्यालय में मैं पढ़ता था, आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ केंद्रीय विद्यालय BHU, सो आई ऑल्सो यूज टू गिव द सेम फीस। और वहां पे बहुत अच्छे ऐसे लोग भी आते थे जो बहुत वेल टू डू फैमिली से थे, तो वो भी वही फीस देते थे, हम दोनों सेम लाइन में खड़े होते थे, असेंबली साथ ही होती थी। तो जो भी गवर्नमेंट का ये फीचर है कि गवर्नमेंट इकोनॉमिक जस्टिस देगा, मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा इनकम के बेसिस पे किसी भी दो लोगों पे। इवन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, वहाँ फीस बराबर है सबकी। ऐसा तो नहीं है कि आपका फादर ऑक्यूपेशन पूछ करके आपकी फीस बदल देते हैं। हाँ, एक चीज अलग है कि बेनिफिट के लिए अगर कोई BPL है, कोई बहुत ज्यादा पुअर है, तो उनके बेनिफिशियल के लिए कुछ स्कीम्स लाई जाती है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहते इसको। तो इट इज नॉट डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन टू सेट ऑफ पीपल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस बहुत आसान है, कुछ इसका एक लाइन में मतलब ये रिपब्लिक वाला मतलब ये है कि वी सिटीजन्स हैव पॉलिटिकल इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। यू ऑल्सो कैन वोट, आई ऑल्सो कैन वोट, हम दोनों के पॉलिटिकल राइट्स इक्वल है। और इक्वल एक्सेस टू पॉलिटिकल ऑफिसर्स ऑल्सो, मतलब अगर प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए कोई MP लड़ सकता है तो दूसरा MP भी लड़ सकता है। इक्वल एक्सेस होना चाहिए हर पॉलिटिकल ऑफिस में, दिस इज पॉलिटिकल जस्टिस। MLA के इलेक्शन लड़ने के लिए हर सिटीजन के लिए ओपन है, सब्जेक्ट टू सर्टेन बेसिक रिक्वायरमेंट्स। तो जस्टिस का क्या मतलब हुआ कि आप तीन तरीके के, गवर्नमेंट तीन तरीके के जस्टिस देगा: सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। सोशल का मतलब है इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन, इकोनॉमिक का मतलब है नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन टू पीपल ऑन बेसिस ऑफ इनकम, and political justice means everyone is equal, everyone has equal access to political offices as well as political rights. और ये जो जस्टिस का आइडिया है ये हमने कहां से लिया था? रशियन रिवॉल्यूशन के बाद रशिया से लिया था। नाउ लिबर्टी, लिबर्टी मतलब एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, रोक का ना होना, आपको आपकी एक्टिविटीज करने के लिए फ्री छोड़ना। यू आर फ्री टू परफॉर्म योर एक्टिविटीज सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, बट you are free to do whatever you want. This is the basic meaning of liberty. At the same time, the state should also provide opportunity for the development of your personality. Suppose आप कुछ भी करने को फ्री हो, ये लिबर्टी है आपकी, लेकिन आपकी ये भी लिबर्टी है कि आप जैसे आप कहीं टहलना चाहते हो, जाना चाहते हो, ये आपकी लिबर्टी है। लेकिन स्टेट के पे एक ड्यूटी भी है कि स्टेट ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे जिससे आपका डेवलपमेंट हो। जैसे कि आप कोई नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो स्टेट आपको इंटरफेयर नहीं करेगी, रिस्ट्रेन नहीं करेगी उस पर, क्योंकि इट विल लीड टू योर डेवलपमेंट। तो पर्सनल डेवलपमेंट की चीजों में भी लिबर्टी है आपको, और इन जनरल सेंस भी लिबर्टी है। तो ये गवर्नमेंट का काम है दैट देयर शुड बी एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन subject to some reasonable restrictions that will be dealing in when we will talking about article 19 and all. तो और प्रियम्बल में किस किस चीज की लिबर्टी की बात की गई है? अगर हम प्रियम्बल पे जाएं, पहले पन्ने पे जाएं, सो लिबर्टी ऑफ थॉट, सोचने की आजादी, एक्सप्रेशन, अपने आप को अभिव्यक्त करने की आजादी, बिलीव, एक कोई बिलीव रखने की आजादी, फेथ रखने की आजादी, कोई भी भावना रखने की आजादी, विश्वास रखने की आजादी, इन वर्शिप, पूजा पाठ की भी आजादी,
या जो भी हम रिलीजन फॉलो करना चाहते हैं उसकी आज़ादी। तो इन पांचों तरीके की आज़ादी की बात, हमारे लिबर्टी की बात हमारे यहाँ की गई है। वी हैव द लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप as provided by the preamble. Now this idea of liberty was taken from French Revolution. Let's talk about equality. Equality आप सबको पता है, very simple concept, that equality simply means absence of any special privilege to any section of the society. No one is special, everyone is equal. Simple concept. इक्वलिटी में किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलती है, हर कोई बराबर होता है। और इसके बहुत सारे आर्टिकल हैं, जैसे आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, 325, 326। 325 लोगों को नहीं पता होता, 325 में बता देता हूँ। 325 का मतलब ये होता है कि नो वन शुड बी डिक्लेयर इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन इलेक्टोरल रोल्स ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। मतलब कि वोट देने के लिए आप किसी को इनएलिजिबल नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिलीजन और कास्ट और रेस और सेक्स। इन बेसिस पे आप ये नहीं कर सकते यार दैट यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। ठीक है, तो आर्टिकल 325, आर्टिकल 326, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, these all gives us the equality. और भी बहुत सारे आर्टिकल्स मेंशन है, इवन डीपीएसपी लाइक आर्टिकल 39. सो दीज गिव टॉक अबाउट द प्रोविजन ऑफ इक्वालिटी. एंड 39 क्या है? 39 कहता है दैट मेन एंड वुमेन हैव इक्वल राइट of adequate means of livelihood and equal pay for equal work. So it also promote the concept of equality. So equality का भी हमारे पास है in preamble. Now last word is fraternity. Fraternity means in English it means a sense of brotherhood. There should be a sense of brotherhood between me and you and everyone. So Vidhi was asking day before yesterday that why have we opted for single citizenship and not dual citizenship. I answered the same thing on that day also, and I'm answering the same thing today also, that Constitution want to promote the feeling of brotherhood. It want to promote the feeling of oneness. It want to promote the feeling of unity. That is why we have seen the concept of single citizenship, so that someone sitting in Kerala and someone sitting in Jammu Kashmir, both of them has the feeling that yes, we are touched, we are brothers. We there is an integrity and unity in our country. So in order to promote this concept of brotherhood, there is a provision of single citizenship. Now, also DPSP Article 51A, which talks about fundamental duties. So it is the duty of citizen to promote harmony amongst all. So these are the concept of fraternity, which is very well mentioned in the Constitution. So our preamble, जो कि मैंने आपको बताया, it is the introduction to the Constitution. So it talks that we have given the fraternity also. और 42nd अमेंडमेंट से इंटीग्रिटी वर्ड ऐड कर दिया गया हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में. अर्लियर इट वाज यूनिटी ऑफ द नेशन, बट नाउ इट बिकम यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. तो 3 वर्ड, बहुत गौर से सुनिए, 3 words have been added in our constitution by 42nd constitutional amendment. और वो क्या क्या वर्ड थे? वो वर्ड थे सोशलिस्ट, वो वर्ड थे सेकुलर और इंटीग्रिटी. ये 3 words ऐड किए गए. बहुत बार होता है कि सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड हमें पता होता है, बट वी डोंट नो दैट इंटीग्रिटी वाज आल्सो एडेड बाय 42nd constitutional amendment 1976, which is also known as mini constitution of India. Now आगे बढ़ते हुए, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीएम्बल. प्रीएम्बल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका मैंने 1-2 लोगों के कोट लिए हैं. सर कृष्णस्वामी अय्यर says that preamble of our constitution expresses what we thought or dreamed so long. He was, कृष्णस्वामी अय्यर कौन थे, कोई मुझे बता सकता है? किसके मेंबर थे वो? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मत कहना प्लीज. कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के तो थे ही, बट किसी पर्टिकुलर कमिटी के भी थे. या आई गॉट अ चैट. Azhar and Rashmi both have answered that drafting committee. Sir Alari Krishna Swamy was Ayyar, even Anita answered. He was a member of drafting committee. As we talked yesterday that there were 7 members in drafting committee. One of them was Sir Alari Krishna Swamy Ayyar. So he told that preamble to our constitution expressed that what we thought or dreamt so long. So if you want to see what were the noble vision, if you want to know what our constitutional maker wanted to achieve, so open preamble and read. So you will get to know, oh, these liberty, faith, justice, these noble ideas were the objectives of our constitutional maker. So it was talked by Sir Alari Krishna Swamy Ayyar. Not just this, बहुत लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे वर्ड यूज किए गए. मैंने आपको बताया ही कि आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा था नानी पालकी वाला ने. सो दिस ऑल्सो इंक्रीज टू द मीनिंग ऑफ प्रीएम्बल. के.एम. मुंशी said that it is the horoscope of our sovereign democratic रिपब्लिक. के मुंशी ने ये कहा. सो इट कंटेन्स ग्रैंड एंड नोबल विजन, जो मैंने आपको पहले बता दिया. इवन हर्ष त्रिपाठी commented drafting committee. Yes, you all are right. Krishnaswamy Iyer was a member of drafting committee. That is why it becomes even more important. His words become more important because he has a special role in the drafting of Constitution of India. Now let's talk about preamble as a part of Constitution. Now there was a controversy.
क्या था कि आपको पता है शुरुआत से ही देयर वाज अ टसल बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी एंड लेजिस्लेटिव इन ऑर्डर टू बिकेम मोर डोमिनेंट। दोनों चाहते थे कि मोर पावरफुल कौन है। ये जो टसल चल रहे थे लास्ट में सॉर्ट हो गया दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज मोर पावरफुल, नीदर द लेजिस्लेचर नॉन द जुडिशरी। बट एक टसल शुरू से चल रही थी, बहुत सारे अमेंडमेंट लाती गई, बहुत सारे केसेस साथ साथ चलते रहे। आपको मैं शायद केसेस का भी डील करूं, मैंने केसेस डील करे हैं, वैसे आप लोगों के साथ नहीं करे तो मे बी ऑन वन फाइन डे आई विल डिस्कस अबाउट दिस टसल बिटवीन गवर्नमेंट एंड जुडिशरी कि कैसे 24th अमेंडमेंट लाया गया, कैसे फर्स्ट अमेंडमेंट आया, एक के बाद एक केस होते रहे। गोलकनाथ केस हुआ, उसके बाद आपको गोपालन केस हुआ, आपको केशवानंदा भारती केस हुआ, तो बहुत सारे केसेस हुए। और वो इट वाज ऑल अबाउट द टसल बिटवीन जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर। तो क्या कहा गया, प्रियम्बल पे भी टसल हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में बेरोबरी केस की हमने बात करी थी। तो बेरोबरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट टॉक्स अबाउट द पर्पस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज द की टू द माइंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर। अगर आपको माइंड पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का तो प्रियम्बल पढ़िए, इट इज द की। बट एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने इंपॉर्टेंस को बेशक रखा, उन्होंने कहा बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी चीज है। इससे अगर कभी कोई एम्बिगस सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, सपोज कोई आर्टिकल है उसको इंटरप्रिटेशन करने में दिक्कत होती है, वी आर नॉट वेरी मच सर्टेन दैट व्हाट डज दिस आर्टिकल मीन, तो उसके लिए हम प्रियम्बल उठाएंगे और प्रियम्बल के रेफरेंस में पढ़ के देखेंगे, सो दैट वी कैन गेट दैट ओ दिस इज द पर्टिकुलर मीनिंग और दिस इज व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर वांटेड टू say from this article. But Birubari Union case mein, the court said that it is not a part of constitution. But later in Keshwananda Bharati, it was held that it is a part of constitution and it is of extreme importance. Keshwananda Bharati case, which is known as Keshwananda Bharati versus State of Kerala and also known as Basic Structure Doctrine case. Now, there are two things which are required to be pondered. First of all, preamble is not a source of power नॉट अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेशन। प्रियम्बल से कोई पावर नहीं मिलती, प्रियम्बल में जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी सबकी बात करी गई है, बट प्रियम्बल कोई पावर कन्फर नहीं करता लेजिस्लेचर पे, न लेजिस्लेचर से कोई पावर लेता है। तो आप प्रियम्बल को की बात करके आप प्रियम्बल का रेफरेंस देके कोई पावर लेजिस्लेचर यूज नहीं कर सकती। लेजिस्लेचर कांट से दैट वी हैव दिस पावर एज इट इज मेंशन इन द प्रियम्बल। सो प्रियम्बल इज नॉट नीदर कन्फरिंग एनी पावर और नॉट टेकिंग अवे एनी पावर फ्रॉम द लेजिस्लेचर। पावर लेजिस्लेचर के पास क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में वेरी वेल मेंशन्ड है, आप प्रियम्बल से नहीं ना ले सकते, ना बढ़ा सकते, ना घटा सकते। ऑल्सो इट इज नॉन जस्टिसेबल इन कोर्ट, मतलब अगर कुछ ऐसा होता है, कोई ब्रदरहुड की फीलिंग है, अब किसी ने मेरे से कह दिया तुम मेरे भाई नहीं हो जाओ, आई डोंट रिकॉग्नाइज यू, तो मैं कोर्ट में नहीं चला जाऊंगा कि सर इन कोर्ट देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेटर्निटी, सो इट इज दैट वी हैव टू प्रमोट ब्रदरहुड, तो अब आप इस बात को इन्फोर्स करिए। तो ऐसा नहीं है, प्रियम्बल कोई पावर नहीं है, मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो इट हैज नो पावर, नो बाइंडिंग पावर, इट इज नॉट जस्टिसेबल, बट इट इज द नोबल आइडियाज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर। अगर आपको समझना हो कोई चीज में दिक्कत आ रही है कि यार ये करना क्या चाहते थे, तो आप प्रियम्बल देखे तो आपको समझ में आएगा कि व्हाट वाज द माइंड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर। और इसीलिए प्रियम्बल को लास्ट में अडॉप्ट किया गया, ये बात हमने कल भी डिस्कस किया था, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्म्ड। आफ्टर दैट जब उन्होंने देखा कि प्रियम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सोनेंस में हैं, एक दूसरे के साथ हैं, तभी जाके प्रियम्बल को अडॉप्ट किया गया। देखा कि प्रियम्बल में जो चीजें मेंशन्ड है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, आर देयर प्रोविजंस बैकिंग द प्रोविजन ऑफ प्रियम्बल, what the ideas that are mentioned in preamble are very well mentioned in the constitution itself. So that is why the preamble was adopted after the adoption of constitution. लास्ट में उसको अडॉप्ट किया गया, सबसे लास्ट में प्रियम्बल अडॉप्ट किया गया था। तो ये पूछा था सबसे लास्ट में क्या अडॉप्ट किया गया, तो प्रियम्बल सबसे लास्ट में अडॉप्ट किया गया। और ये थोड़ा मजेदार बात है कि जो चीज सबसे पहले आती है कॉन्स्टिट्यूशन में उसको सबसे आखिरी में अडॉप्ट किया गया। बट इट वाज, मतलब वो लोग इतने नोबल लोग थे कि उनको पता था कि हम कोई झूठ नहीं लिखेंगे, हम वही लिखेंगे जो हम कर सकते हैं, हम एक आइडियल स्टेट की बात नहीं करेंगे। एमेंडेबिलिटी, मैंने आपको बताया कि बेरुबरी यूनियन केस में कह दिया गया था प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बात आर्ग्यू करी गई कि सर प्रियम्बल तो पार्ट ही नहीं है, तो आप उसको अमेंड कैसे कर सकते हो? अगर कोई चीज कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो उसको ही तो अमेंड किया जा सकता है। When something is not a part of constitution, then how can it be amended? It was said, it was held in Berubari Union that it is not a part of constitution. So in Keshwananda Bharati, there was discussion about amendment, that what all can be amended. So when it was about, they were discussing about preamble, so the petitioner side said that sir, preamble cannot be amended, as the Supreme Court had very well held that preamble is not a part of constitution. So in Keshwananda Bharati, the court said no,
preamble is a very significant part of Indian constitution, but preamble at the same time can be amended subject to that no amendment is done to the basic features. मतलब वही जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन केशवानंदा भारती केस में कहा गया था कि कोई भी चीज अमेंड कर सकते हो, लेकिन वो पूरी इस तरीके से अमेंडमेंट ना हो कि पूरा बेसिक स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाए, पूरी मीनिंग चेंज हो जाए, एकदम फंडामेंटल्स जो है वो बदल जाए। ऐसा चेंज नहीं कर सकते, स्लाइड चेंज आप ला सकते हो प्रेम्बल में, जैसे कि सेकुलर वर्ड ऐड किया गया तो ये कोई गलत नहीं था, इट डिडंट इन्फ्रिंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो केशवानंदा भारती में प्रियम्बल के बारे में ये कहा गया, पहली बात तो ये हेल्ड की, बहुत बार आता है इन विच केस इट वाज हेल्ड दैट प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और लोग घबरा जाते हैं, अरे ये कैसे, किस केस में क्या दिया। सो इट वाज हेल्ड इन बेरुबरी यूनियन, and at the same time if it is asked that in which case it was held that preamble is a part of constitution, तो आप कहोगे it was Keshwananda Bharati versus state of Kerala. This was about amendability. This was all about today. If there is any question, you can drop it in the chat box. I will reply to your questions. Just a small revision in 2 minutes that ingredients of preamble. Preamble gives the source of authority to the constitution, that is we the people are the authority. Nature, that it is socialist, secular, democratic republic. It talks about objective, that what our constitution want to achieve. We want to give us justice, liberty, equality, fraternity. And what is the date of adoption. These were the ingredients of preamble. We talked about all sovereignty, socialist, secular, democratic republic, justice, liberty, equality, fraternity. The significance, we talked about preamble, that how preamble was once said that it is not a part of constitution, but later on it was changed to be the part of constitution. It was said that it can amend it. Also very important thing, that it is non-justiciable in court. Remember, preamble is not non-justiciable in court. You can't move to court for enforcement of any provision that is mentioned in the Constitution of India, in the preamble of India. So this is all from today. Thank you for giving your time. Tomorrow we will come with another topic, which I guess is union and state, union and territory. Yes, tomorrow we will be talking about various state, how states were formed after independence, what and you know, हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो किया गया था, पुलिस एक्शन किया गया था, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था. सो विल बी डीलिंग ऑल दीज काइंड ऑफ एस्पेक्ट्स, हाउ स्टेट्स वर फॉर्म. So okay, thank you, and we will be also talking about part 1 of the constitution, that is article 1 to article 5, which have part 1, union and state. So we will be taking part 1 of the constitution tomorrow. Okay, thank you, have a nice day.